Hello students. So in the previous lectures we have been discussing about the osmoregulation in the marine habitat, in the freshwater habitat and the terrestrial habitat. We have talked about the osmoconformers, osmoregulators, and we did talk about an interesting animal known as the kangaroo rat. So I hope you have gone through that lecture. So in this lecture we are going to talk about the excretory products. So we are going to talk about the excretory products. So in this lecture we're going to talk about the excretory products. So excretory products तो आपको पता है what are those? Okay, जो मैंने आपको previous lecture में बताया था cellular waste जो होता है. Now different animals have the different excretory products. Okay, जैसे कि there are some animals that excrete amino acid. There are some animals that excrete amino acid जैसे कि एस्ट्रेसिस स्टारफिश आप ले सकते हो and unio. You can take the example of starfish and unio. Unio अगर आपको नहीं पता है, it's a freshwater bivalve. It's a freshwater bivalve. ठीक है? Now there are some animals that excrete ammonia. Some animals that excrete अमोनिया. जैसे कि जब अमीनो ग्रुप अमोनिया से निकल जाएगा, जब अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड से निकल जाएगा, so this would result in the formation of ammonia. Amino group is released from amino acid. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा अमीनो एसिड को एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है, यहाँ पे अमोनिया को एक्सक्रीट किया जा रहा है, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग दी जब अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड से रिलीज हो जाता है. ठीक है, नाउ दिस अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. इट इज highly toxic and highly soluble in water. That means for the removal of ammonia there is requirement of high amount of water. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ high amount of water is required to excrete out ammonia. ठीक है, there's a lot of water required. ठीक है, so ये अमोनिया को वही एनिमल्स एक्सक्रीट कर पाएंगे या उन्होंने ये एबिलिटी डेवलप करी होगी जिनके सराउंडिंग में या जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होगी. जैसे कि मैंने बोला कि यार हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट आउट अमोनिया. तो यहाँ पे एक सीधी सी बात हो जाती है, ओनली द एनिमल्स विच हैव अबंडेंट ऑफ वाटर दे कैन एक्सक्रीट अमोनिया एज द वेस्ट. ठीक है, दूसरी चीज इट्स हाईली टॉक्सिक और उसका फॉर्मेशन कब होता है अमोनिया का, जब अमीनो ग्रुप को आप अमीनो एसिड से निकाल देते हो. डन. तो एग्जांपल्स यहां पे मेंशन करें अपन. अच्छा, जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं दोज आर नोन एज मोनोटेलिक एनिमल्स. एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया, animals excreting ammonia are known as monotelic animals. Are known as monotelic animals, and the phenomena
is known as a monotelism. क्या कहा जाता है फिनोमिना को? The process is known as a monotelism. So animals जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, animals excreting ammonia are known as a monotelic animals and the phenomena is known as a monotelism. ठीक है? The phenomena is known as a monotelism. Then examples अगर ले, so let's take the example of protozoans. So इसकी कैटेगरी में आ सकते हैं protozoans आ सकते हैं. Then we can take the example of the sponges, cnidarians. We can take the example of cnidarians. Then flatworms. Then polychaetes. ठीक है? And crustaceans, bony fish, tadpole, and amphibians. ठीक है? So these are some of the examples. We have the protozoans, sponges, cnidarians, flatworms, polychaetes, crustaceans, bony fish, tadpole and amphibians are the ones which are a monotelic. ठीक है? Now दूसरे एनिमल्स कौन से हैं? दूसरे एनिमल्स की कैटेगरी आती है कि जो अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं. नॉट टोटली टॉक्सिक नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा कम टॉक्सिक. दैट इज यूरिया. NH2, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं NH2CONH2. ठीक है? दैट इज यूरिया. तो यूरिया की अगर बात करते हैं, सो यहां मैं मेंशन कर देता हूं पहले कि यार यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है. तो यूरिया किससे बनता है? अमोनिया से ही बनता है. तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर. अमोनिया इज कन्वर्टेड इन यूरिया इन लीवर. इज कन्वर्टेड टू यूरिया इन लीवर by using एनर्जी. ठीक है? एनर्जी यूज करके काफी एटीपी यूज किए जाते हैं, तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है. अब क्यों यूरिया का फॉर्मेशन किया जा रहा है? क्यों अमोनिया एक्सक्रीट नहीं किया जा रहा है? बिकॉज यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. अमोनिया के कंपैरेटिवली यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक है. ठीक है? एंड लेस सोल्यूबल. सोल्यूबल भी कम है और टॉक्सिक भी कम है. नाउ एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया, एनिमल्स excreting urea are known as ureotelic animals. They are known as ureotelic animals, and the phenomena is known as or या फिर and the process of forming is known as ureotelism. The process is known as ureotelism. ठीक है? So क्या क्या याद रखना है? Ammonia is converted into urea in liver by using a lot of energy. Urea is less toxic and then ammonia and less soluble as well. And animals excreting urea are known as
Ureotelic animals, and the process is known as ureotelism. Okay, so now we'll talk about the process through which let's talk about the process through which urea is formed out of ammonia, and this is all taking place in the liver. Okay, and to be more specific, some part of it takes place inside the mitochondria as well. Okay, so I'll rub it down and I'll talk about the process of formation of urea from ammonia. So we term it as the urea cycle. क्या कहा जाता है प्रोसेस को? यूरिया साइकिल कहा जाता है. अच्छा, आई हैव फॉरगॉट टू टॉक अबाउट प्रीवियस लेक्चर में जो अपनी बात चली थी कैंगारू रैट के बारे में. ठीक है, तो कैंगारू रैट के बाद आई वाज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैमल. तो कैमल का प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन नहीं हुआ था, आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, लास्ट में ले लेते हैं उसको. ठीक है, सो अभी कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को एंड लेट्स टॉक अबाउट द यूरिया साइकिल. ठीक है, इट इज नोन एज यूरिया साइकिल, या फिर वी कैन टर्म इट एज द क्रैब्स हैंसलेट साइकिल. क्या बोलते हैं? क्रैब्स हैंसलेट साइकिल. ठीक है, क्लियर है? सो दिस यूरिया साइकिल और द क्रैब्स हैंसलेट साइकिल. नाउ लिवर सेल के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है. लिवर सेल में सम ऑफ इट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो जो डिफरेंट एमिनो एसिड्स है, different amino acids, they give rise to a compound known as glutamate. Okay, किसका formation करते हैं? They form a compound known as glutamate. This glutamate, इसमें से इस glutamate में से there is release of NH2. There is release of NH2. Okay, so glutamate किसमें convert हो जाता है after the release of NH2? It is converted into alpha ketoglutarate acid. किसमें? alpha ketoglutarate acid में convert हो जाता है. alpha ketoglutarate acid में convert हो जाता है, and the alpha ketoglutarate acid participates in some other metabolic pathway. क्या लिखेंगे? It participates in some other metabolic pathway. Participates in other metabolic pathway. ठीक है, तो जो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है आफ्टर द रिलीज ऑफ NH2 from glutamate, it is going to be used for some other purpose from some other metabolic pathway. अब ये जो NH2 है, ये NH2 क्या करता है? This NH2 it binds with what? It binds with carbon dioxide. जो NH2 रिलीज हुआ था ग्लूटामेट से, it binds with carbon dioxide. ठीक है, and it results in formation of, by using energy, it results in formation of carbamyl phosphate. ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन करता है ये? कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, and it uses what? It uses 2 ATPs. This is very important. कितने ATP यूज किए जाते हैं यहाँ पे? 2 ATPs are used, and that is the reason we get 2 ADP as well. ठीक है, 2 ATPs are used,
which results in formation of carbamyl phosphate. This carbamyl phosphate, it binds with another amino acid which is known as ornithine. किसके साथ बाइंड करता है? ऑर्निथिन के साथ बाइंड करता है. It binds with ornithine, which is a amino acid as well. ठीक है? So now carbamyl phosphate and ornithine, that is an amino acid. Okay? They get together and they form citrulline. किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? दे फॉर्म सिट्रुलिन. ठीक है? दिस सिट्रुलिन, इट बाइंड्स विथ एस्पार्टेट. ठीक है? इट बाइंड्स विथ एस्पार्टेट. It binds with aspartate. Now what is this aspartate? So it is also a compound which is formed by glutamate. Okay, it's also a compound which is formed by glutamate. ये जो aspartate का फॉर्मेशन हुआ है, ये किसने किया है? ये भी किया है ग्लूटामेट ने. ठीक है? And there is use of energy as well. यहाँ पे एनर्जी यूज करी जाती है. यहाँ पे एक एटीपी यूज किया जाता है, बट उस एटीपी के दो फॉस्फेट्स को यूज किया जाता है. जैसे आप एक एटीपी यूज कर रहे हो तो उसका एक फॉस्फेट निकालते हो तो क्या बनता है? एडीपी बनता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ठीक है? जैसे कि एटीपी, और इस एटीपी का मैं एक बॉन्ड तोड़ता हूँ, फॉस्फेट बॉन्ड, तो मुझे क्या मिलेगा? आई गेट एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अगर मैं इसके दो फॉस्फेट निकालता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? एएमपी and I'm sorry, what I'll get is I'll get ATP के अगर दो फॉस्फेट निकालते हैं, दो फॉस्फेट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, सो AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. मतलब यहाँ पे मैंने एक फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ा है, बट यार के केस में मैंने दो फॉस्फेट बॉन्ड्स तोड़े. तो यहाँ पे क्या होता है कि ATP एक यूज में आता है, बट उसके दो फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है. ठीक है? तो इसलिए I'll put it as ATP and it results in formation of AMP. ATP से AMP हुआ, मतलब कितने फॉस्फेट यूज किए? दो, है ना? दो फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटे. डन. नाउ citrulline plus aspartate, they result in formation of argininosuccinate. किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो यहां पे फॉर्मेशन होता है argininosuccinate. Succinate. ठीक है? It results in formation of argininosuccinate. This argininosuccinate, इसमें से there's a release of fumaric acid. And there is formation of so there is a release of what? There is a release of fumaric acid. There is a release of fumaric acid, and the argininosuccinate gets converted into arginine. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है? Is it here? Gets converted into arginine. ठीक है? This arginine, it undergoes hydrolysis and it results in formation of urea. अब क्या बनता है? ये जो arginine है, it undergoes hydrolysis and it results in formation of यूरिया. ये मिला यूरिया. इस तरीके से यूरिया बनता है, और यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे?
I need to add water, क्योंकि what we are doing, we are performing the hydrolysis of arginine and that is the reason we get urea. ठीक है, तो यूरिया का आर्जिनिन का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको यूरिया मिलेगा और एक और कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी दी ऑर्निथिन, दैट इज गोइंग टू बी दी ऑर्निथिन. ठीक है, तो ये साइकिल होगी पूरी. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर. तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं. अच्छा, अब दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन एंड एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एंजाइम. मैंने कहीं पे भी एंजाइम मेंशन नहीं करे. सो आई डू वन थिंग, आई पुट द नंबर्स एंड देन विल टॉक अबाउट द एंजाइम की कौन सा एंजाइम कहां पे काम में आ रहा है. ठीक है, तो जो फर्स्ट एंजाइम है जैसा, ओके, सो glutamate which is formed through different amino acids that results in formation of alpha ketoglutarate acid. This alpha ketoglutarate acid is going to participate in some other metabolic pathway. It participates in some other metabolic pathway. ठीक है, बचा क्या? बचा NH2. तो ये जो NH2 है ये किसके साथ बाइंड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है and it uses up the energy, it uses 2 ATP and it results in formation of carbamyl phosphate. ठीक है, so this is step number 1. ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसके बारे में मैं लिखूंगा. ठीक है, then this carbamyl phosphate it gets together with ornithine which is an amino acid. ठीक है, and this results in formation of what? This results in formation of citrulline. ठीक है, it results in formation of citrulline. So this is step number 2. Clear है? Then citrulline along with aspartate. Aspartate को किसने बनाया? Aspartate को glutamate ने बनाया. So along with aspartate, ठीक है, it results, it uses ATP as well and it results in formation of what? It results in formation of argininosuccinate. तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंजाइम यहाँ पे काम करेगा. Argininosuccinate, इसमें से फ्यूमेरिक एसिड बाहर आता है. ठीक है, और किस चीज का फॉर्मेशन होता है? आर्जिनिन का फॉर्मेशन होता है. सो यहाँ पे आएगा फोर्थ एंजाइम. ठीक है, दिस आर्जिनिन इट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा? आपको एक जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज यूरिया, जो आपकी बॉडी बाहर निकाल देगी. एंड अनदर प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑर्निथिन, दैट इज अमीनो एसिड एंड दिस इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन. तो इस तरीके से आपकी बॉडी क्या करती है? अमोनिया में से, ठीक है, अमोनिया में से किस चीज का फॉर्मेशन करती है? यूरिया का फॉर्मेशन करती है. तो यहाँ पे मैं एंजाइम नंबर 5 लिखूंगा. 5वां एंजाइम यहाँ पे आएगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इन द लिवर सेल. दिस इज ऑल हैपनिंग इन द लिवर सेल. और लिवर सेल में मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, वी डू नॉट हैव, ओके वेल, ओके, ये जो प्रोसेस आई विल जस्ट मार्क इट डाउन. ऑर्निथिन से लेके, लेट्स शो इट बाय डॉटेड लाइंस. ओके, सिट्रुलिन वाला जो प्रोसेस है, सिट्रुलिन तक का जो प्रोसेस है, ओके, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. द रेस्ट इज गोइंग टू टेक आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द साइटोसोल. तो यहां पे लिख देते हैं, this is taking place in the mitochondria and the rest is going to take place in the cytosol. कहां पे? साइटोसोल में. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो यहां पे we need to put down 5 enzymes, क्योंकि जो रिएक्शन हुआ है उसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव पार्ट के हिसाब से आप देखो तो. सो आई पुट डाउन द एंजाइम. सो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5. तो आप समझ जाना कहां पे कौन से एंजाइम की बात हो रही है. सो आई रब दिस डाउन. ओके, सो लेट्स पुट इट एज फर्स्ट जो एंजाइम था, ओके, उसका नाम है
carbamyl phosphate synthase. The name is phosphate synthase या फिर synthetase. ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज या फिर सिंथेज भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइम मैं सिंथेज लिखता हूं. सेकेंड जो एंजाइम आएगा जो मैंने लिखा था वहां पे, दैट इज ऑर्निथेन ट्रांस कार्बाइलेज. ऑर्निथेन ट्रांस कार्बोमाइलेज. ठीक है, ऑर्निथेन ट्रांस the third is argininosuccinate synthetase. Argininosuccinate synthase. Argininosuccinate synthase. And the fourth enzyme, that is argininosuccinate lyase. Argininosuccinate lyase. ठीक है, एंड द लास्ट एंजाइम जहां पे फॉर्मेशन हुआ था किसका, यूरिया का, दैट इज आर्जिनेस. ठीक है, fifth enzyme, I'm sorry. Done? So these are the enzymes that participate in the urea or the Crabbe-Hanslick cycle. ठीक है, सो और क्या चीज याद रखनी, यूरिया बनने के लिए कितने एटीपी यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे मेंशन करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. I'll rub this down. लीवर में जब यूरिया बनता है, 1 molecule of urea, one molecule of urea requires 4 phosphate bond broken and 3 ATPs used. ठीक है, यहां लिखेंगे क्या क्या चाहिए. It requires 3 ATPs. ठीक है, 3 ATP, 2 स्टार्टिंग में यूज में आए थे और 1 ATP कहां पे यूज में आता है, जब आप सिट्रुलिन से आर्जिनिनोसक्सिनेट बनाते हो वहां पे आप 1 ATP यूज करते थे. बट उस ATP में आपने क्या किया था, भले 1 ATP यूज किया था बट उसके 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स तोड़े थे. तो टोटल कितने फॉस्फेट बॉन्ड्स हो जाएंगे. ठीक है, एक में से 2 टूट रहे थे और स्टार्टिंग वाले में एक ATP से आपने एक फॉस्फेट ही लिया था. तो मैं यहाँ पे देखो दिखा देता हूं. एक ATP जो आपने पहले यूज किया था उसको आपने सिर्फ कन्वर्ट किया ADP में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. दूसरा ATP जो आपने यूज किया है उसको भी आपने एक ही फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ा है, सो दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और जो लास्ट में ATP आपने यूज किया था एक, दैट इज यू कन्वर्टेड इट इनटू AMP. ठीक है, मतलब देयर इज ब्रेकेज ऑफ 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स, इसलिए यहां पे क्या निकले, 2 फॉस्फेट्स निकले. तो टोटल ATP कितने यूज किए, टोटल 3 ATP यूज किए और फॉस्फेट बॉन्ड कितने तोड़े. तो यहां लिखेंगे 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स आर ब्रोकन. सॉरी 4, 1 2 3 4 4 phosphate bonds are broken. ठीक है, और ATP कितने यूज किए हैं, 3. दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर. ओके गुड. सो यहां पे अभी यूरिया की बात कर ली. यूरिया भी एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं. यूरिया के बाद सबसे लीस्ट टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, दैट इज यूरिक एसिड. दैट इज यूरिक एसिड. तो यूरिक एसिड इट इज लीस्ट टॉक्सिक and least soluble. It is
least toxic and it is least soluble. ठीक है. Animals that excrete urea are known as, they are termed as uricotelic animals. They are known as uricotelic animals, and the phenomena is known as uricotelism. The phenomena is known as uricotelism. ठीक है. सो जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाएगा. जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करेंगे उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाएगा, और जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहा जाएगा. ठीक है. तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन है? सो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड. ठीक है. एंड इट इज लीस्ट सोल्यूबल, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड. मैं लिखूंगा minimum amount of urea is, minimum amount of water is required to excrete यूरिक एसिड. सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए. ठीक है. डन. नाउ एग्जांपल्स अगर देखें, सो द बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सो वी हैव birds, reptiles, and एक एक्सेप्शन लेते हैं लैंड स्नेक्स. ठीक है. reptiles and land snakes, so these are uricotelic animals. Done. अच्छा, mammals में भी some amount of uric acid is formed through the amino acids in mammals. In mammals, small amount of uric acid is formed from purines. ठीक है. तो थोड़ा अमाउंट है तब तक ठीक है. अगर एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, ठीक है, सो एक्सेसिव अमाउंट इज नॉट गुड. Excessive amount leads to, in mammals, excessive amount of of uric acid leads to gouty arthritis, a condition known as gouty arthritis. That is, it causes a lot of joint pains. ठीक है. So you have a condition known as gouty arthritis due to excessive amount of uric acid. It deposits in the form of crystals. आपके joints में crystals के form में जमा हो जाएगा. ठीक है. So we have animals excreting uric acid, we have animals excreting urea, we have animals excreting ammonia. Now there are something else जो minor waste कहा जाता है, जो small amount में excrete किया जाता है. So I'll write this down. Okay, so
माइनर वेस्ट की कैटेगरी में मैं इनको मेंशन करता हूं, थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस होगा. सो वी हैव ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड. देयर इज ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO. ठीक है, इट इज नोन एज TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड. ठीक है, तो यहां पे सम इट इज फॉर्म्ड बाय अमोनिया. फॉर्म्ड बाय अमोनिया ही इसे बनाता है. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय अमोनिया. इट इज नॉन टॉक्सिक एंड वाटर सोल्यूबल. तो ये पानी के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा. इट इज नॉन टॉक्सिक एंड वाटर सोल्यूबल. सब में देखने को नहीं मिलेगा. सम बोनी फिश, सम मैराइन बोनी फिश excrete trimethyl amine oxide. ठीक है, some of the bony fish are going to excrete, marine bony fish. Then we have one more, that is guanine. Guanine is actually a purine. ये एक प्यूरिन है. आप लोग ने सुना होगा गुआनिन का नाम. ठीक है, डीएनए जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा प्यूरिन और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, और वहां पे आप गुआनिन के बारे में पढ़ोगे. सो गुआनिन भी रिलीज होता है. इट इज insoluble in water and hence excreted in the form of crystals. पानी में इनसॉल्यूबल है, इसलिए ये क्रिस्टल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाता है. ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो रहा है, फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. तो यहां पे एग्जांपल में लिखूं तो आई कैन पुट द एग्जांपल ऑफ मोस्टली बर्ड्स, मोस्टली स्पाइडर्स. मोस्टली स्पाइडर्स में आपको गुआनिन का एक्सक्रीशन दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, एंड सम बर्ड्स, मोस्टली स्पाइडर्स एंड सम बर्ड्स. ठीक है, फिर एक और चीज है, दैट इज हिप्यूरिक एसिड. एक और माइनर वेस्ट है, दैट इज हिप्यूरिक एसिड. ठीक है, देयर इज हिप्यूरिक एसिड. नाउ व्हाट इज दिस हिप्यूरिक एसिड? मैमल्स एक्सक्रीट, मैमल्स में देखने को मिलेगा, मैमल्स एक्सक्रीट benzoic acid as hippuric acid. Benzoic acid as hippuric acid. और ये benzoic acid कब बनता है? So benzoic acid is formed during the fat metabolism. जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है मैमल्स में, उस टाइम पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. सो मैमल्स क्या करते हैं, इस बेंजोइक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिप्यूरिक एसिड. डन. देन देयर इज
ऑर्निथ्यूरिक एसिड, कौन सा एसिड है? ऑर्निथ्यूरिक एसिड। नाउ व्हाट इज दिस ऑर्निथ्यूरिक एसिड? सो ये आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स में। birds excrete benzoic acid as ornithuric acid। बर्ड्स क्या करेंगे? ऑर्निथ्यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे, बेंजोइक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्निथ्यूरिक एसिड। और मैमल्स क्या करेंगे? बेंजोइक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हिप्यूरिक एसिड। ठीक है, डन। नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। एक और माइनर वेस्ट जो है, दैट इज क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन। क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन। ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना। नाउ क्रिएटिन का फॉर्मेशन होता है लिवर में एंड इट इज स्टोर्ड इन मसल व्हाइल द रेस्टिंग स्टेज। यहां लिखेंगे creatine is formed in liver it is formed in liver and stored in muscles during resting stage। ठीक है, तो क्रिएटिन का फॉर्मेशन कहां होता है? लिवर में होता है। और उसको स्टोर कहां किया जाता है? उसको स्टोर किया जाता है किसमें? इन मसल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। आई पुट देयर as क्रिएटिन फॉस्फेट। मसल्स में इसको स्टोर किया जाएगा एज क्रिएटिन फॉस्फेट ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, मतलब ये जो क्रिएटिन बना लिवर में, उसको मसल में स्टोर किया जाता है। क्रिएटिन फॉर्म्ड इन लिवर इज स्टोर्ड इन मसल एज क्रिएटिन फॉस्फेट ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज। नाउ जब आप कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हो तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट किस काम में आता है? ये क्रिएटिन फॉस्फेट आपको फॉस्फेट सप्लाई करता है, एटीपी के सप्लाई में काम आएगा। ठीक है, मतलब जो एटीपी यूज में आ रहे, क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करेगा? जो एटीपी यूज में आ रहे, उन एटीपी को, जो एडीपी यूज में आ जाएगा ना, जैसा आपने एटीपी यूज किया कोई एक्टिविटी के लिए, एटीपी का यूज किया, तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। तो ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को क्रिएटिन क्या प्रोवाइड करेगा? फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। समझ में आया? तो जब आपकी बॉडी में कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी चल रही है तो उस टाइम पे एटीपी यूज में आ रहा है और उस एटीपी को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? एडीपी में, दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। दिस इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट से फिर से एटीपी का फॉर्मेशन करना, दैट इज डन बाय क्रिएटिन फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट है इसका, ये हेल्प करता है एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, तो जब ये काम चलता है तो एक वेस्ट का फॉर्मेशन होता है, सम अमाउंट ऑफ creatine phosphate is lost, है ना? Some amount of creatine phosphate is lost as creatinine। किसके फॉर्म में लॉस्ट होता है? It is lost in the form of creatinine। ठीक है, क्रिएटिनिन के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। और बाकी का जो क्रिएटिन है वो कहां चला जाता है?
इट इज अगेन स्टोर्ड इन द लिवर, ठीक है। वो फिर से कहां चला जाएगा, आई एम सॉरी, वो फिर से मसल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहां पे इसकी जगह पे इसको लिखता हूं, इट गोज बैक टू दी मसल। डन, समझ में आया। तो जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो एक्सरसाइज के लिए तो आप काफी ज्यादा एटीपी यूज करोगे, है ना। तो यहां, अच्छा यहां पे लिखते हैं अपन एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज करी, तो एक्सरसाइज में जो आपने एटीपी यूज किया, वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। और उस एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करेगा क्रिएटिन फॉस्फेट। और जब ये बनाएगा क्रिएटिन फॉस्फेट, एटीपी बनाएगा, तो थोड़ा बहुत क्रिएटिन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन, ठीक है, इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन एंड द रेस्ट क्रिएटिन गोज बैक टू द मसल, ठीक है। और फिर से वहां पे क्या बनेगा, मसल से उसको फिर से क्रिएटिन फॉस्फेट बनाया जाएगा और फिर से एटीपी जनरेट करने में काम में आएगा, ठीक है। सो जो क्रिएटिन फॉस्फेट है कहां पे स्टोर हो रहा है, मसल में स्टोर हो रहा है। तो जिन लोगों के पास लो मसल मास है ना, उनमें क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर नहीं हो पाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। जो एटीपी को अपन यूज करते हैं एक्सरसाइज में, वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, और उस एडीपी को रिकन्वर्ट करना है एटीपी में, दैट इज डन बाय क्रिएटिन फॉस्फेट। सो इट इज इन शॉर्ट प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू अस, ओके। सो उस प्रोसेस में क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्रिएटिन लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन एंड द रेस्ट गोज बैक टू द मसल एंड इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट। नाउ I'll write this down. Now if, because it is being stored in the muscle, so if muscle mass is low, if muscle mass is low, creatine phosphate, or let's say creatine, is not able to store if muscle mass is low, storage of creatinine is not possible. तो क्रिएटिन आपको कहां देखने को मिलेगा, सो क्रिएटिन appears in urine, ठीक है, because of the low muscle mass, storage of creatine is not possible. तो क्रिएटिन appears in urine, ठीक है। and it is very common, appearance of creatine is very common in females, infants, appearance of creatine in urine is very common in females. females में मसल मास जो होता है वो कम होता है ना फीमेल्स में, इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स एंड infants, ठीक है। so that means the levels of creatinine the levels of creatine can be used to figure out कि मसल मास कम है या ज्यादा है, ठीक है। अगर मेल्स में ये चीज दिख रही है आपको कि यूरिन में ज्यादा क्रिएटिन दिख रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाओ कि मेल्स में काफी ज्यादा मसल लॉस हुआ है, मेल्स के अंदर काफी ज्यादा मसल लॉस हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो नॉर्मली यूरिन में क्या दिखेगा, क्या लिखे अपन यहां पे, नॉर्मली कौन सी चीज दिखेगी, क्रिएटिनिन
appears in urine. So normally क्रिएटिनिन तो यूरिन में दिखेगा ही, बिकॉज वो तो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है. बट अगर क्रिएटिन यूरिन में दिख रहा है देन इट हैज टू बी वरीड अबाउट, है ना. मेल्स में अगर क्रिएटिन यूरिन में दिख रहा है तो इट हैज टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज क्रिएटिन अगर यूरिन में दिख रहा है दैट मीन्स क्रिएटिन इज नॉट बीइंग स्टोर्ड इन द मसल. व्हाई नॉट बीइंग स्टोर्ड इन द मसल? बिकॉज देयर इज मसल मास नहीं है, मसल कम हो चुके, ठीक है. और फीमेल्स में तो जनरली देखने को मिलेगा ही, बिकॉज फीमेल का जो मसल मास होता है कंपेयर टू द मेल इज लो, ठीक है. सो आई होप आपको बातें समझ में आई है, ठीक है. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग द माइनर वेस्ट. स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज विद एनी ऑफ द पाथ, जैसे आपने यूरिया साइकिल देखी, तो अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने बताया कि सम ऑफ द पार्ट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द रेस्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द साइटोसोल, एंड दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन इन द लिवर, है ना. लिवर के सेल्स पे होने वाला है. ठीक है, simple and easy, done. So I'll keep this much for the session. Still, if you have any doubts, do drop me a message. Thank you so much.